کریں اسلام آباد کی سیشن عدالت نے شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے۔ عدالت نے جسمانی ریمانڈ کے لیے نظر ثانی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ شاہ خالد ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ شاہ خالد، فیصلے سے متعلق بتائیے گا۔ دیکھیں، شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی نظر ثانی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ شہباز گل کیس میں نظر ثانی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور شہباز گل کو 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا گیا ہے۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ شہباز گل کی جسمانی ریمانڈ کی فوجداری نگرانی اپیل کرمنل ریویژن پر محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے پولیس کی فوجداری نگرانی اپیل منظور کر لی ہے۔ عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر شہباز گل کو پولیس کے حوالے کرنے کا حکم جو ہے وہ دے دیا تھا۔ اس سے پہلے یہ کیس ہائی کورٹ میں انہوں نے ریمانڈ بھی کیا تھا ڈسٹرکٹ کورٹ کہ یہ دوبارہ سنا جائے، جبکہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شہباز گل کو جوڈیشل کر دیا تھا۔ اس کے بعد مقامی عدالت نے اس کیس کو چیلنج کیا تھا۔ مقامی عدالت نے وہ فیصلہ برقرار رکھا تھا اور شہباز گل کو جوڈیشل ریمانڈ والے فیصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا تھا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں یہ چیلنج ہوا تھا اور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو ریمانڈ بیک کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اس کو دوبارہ سنا جائے۔ اب جو پیش رفت ہے اور جو فیصلہ ہے وہ یہی دیا گیا ہے، شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، شاہ خالد آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ آزادی کی تحریک بنیادی انسانی حقوق کی جدوجہد کے لیے ہے۔ شہباز گل پر تشدد کی انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ دوسری جانب شہزاد اکبر کا نام کل ECL ڈالا گیا ہے۔ حسن نواز سے متعلق شہزاد اکبر کے الزامات سنجیدہ ہیں۔ FIA کو حسن نواز کو الزامات کی بنیاد پر طلب کرنا چاہیے۔ تارڑ کا فواد چودھری کے بیان پر رد عمل، کہتے ہیں PTI رہنما کی گفتگو تنازعات سے بھرپور تھی۔ ایک طرف کہتے ہیں تشدد ہوا، دوسری طرف کہتے ہیں نہیں ہوا۔ ایک لاڈلے کے لیے پوری جیل انتظامیہ تبدیل کر دی گئی۔ شہباز گل کے فارم میں فواد چودھری صاحب نے پریس ٹاک کی، وہ تضادات کا مجموعہ تھا۔ ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے، دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا۔ تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کیسا لاڈلا ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے لے کے DIG جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے۔ میں تو ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کا سموٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے۔ پرویز الہی صاحب نے تشدد کروایا اور پھر ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے سپرنٹینڈنٹ کا اور DIG جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو صرف پہلے نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے۔ PTI کے رہنما اسد عمر کہتے ہیں کوشش کی جا رہی ہے شہباز گل کا دوبارہ جسمانی ریمانڈ حاصل کر کے اسلام آباد لے جایا جائے اور تشدد کر کے عمران خان کے خلاف جھوٹا بیان دلوایا جائے۔ فون ایک بہانہ ہے، ورنہ پولیس نے حراست میں لیتے وقت ہی فون قبضے میں لے لیے تھے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف سے ہم ڈر جائیں گے تو یہ بھول ہوگی۔ نواز شریف کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت ملی تو یقین ہے عمران خان جیتے گا۔ شہباز گل نے جو بیان دیا وہ نہیں دینا چاہیے تھا، انہوں نے بڑی غلطی کی ہے۔ سینٹ میں PTI رہنما فیصل جاوید کا 2 ٹوک اعلان، کہا اس قسم کا بیان قابل قبول نہیں ہو سکتا، لیکن اس پر فیئر ٹرائل کیا جائے۔ جو تشدد کیا گیا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ گل ہے ان کے اوپر آپ کارروائی کریں، ضرور کریں، قانونی جو چارہ جو یہ کرے۔ انہیں وہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے بہت بڑی ایک غلطی کی ہے۔ اس قسم کا جو بیان ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ فیئر ٹرائل ہے وہ کیا جائے، لیکن جو تشدد کیا گیا ہے اس کی بھی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ان صفوں میں میمو گیٹ کے کردار بیٹھے ہیں اور غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گھن گرج، کہا ان صفوں میں ڈان لسٹ والے بیٹھے ہیں، یہ کہتے ہیں ہمیں بچائیں، ہمیں غداری کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں۔ یہ لوگ ہیں جو کہ ہمیں بتائیں گے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے۔ آپ کو میمو گیٹ کے کردار ان صفوں میں بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ میمو گیٹ تھا جب آپ امریکہ آئے تھے اور آپ نے کہا تھا ہمیں بچائیں، ان صفوں میں بیٹھے ہوئے ڈان لیگ والے غداری کے سرٹیفکیٹ مت بانٹیں۔ پاکستان کے عوام کو سنیں، ایکشن سے مت بھاگیں، اور پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ کو اگر آپ عزت نہیں دیں گے تو آپ اس ملک کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کریں گے۔ کراچی میں حلیم عادل شیخ کی ضمانت منسوخ ہونے پر اینٹی انکروچمنٹ سندھ نے گرفتار کر لیا۔ حلیم عادل شیخ پر فرد جرم
8 सितंबर को आयद की जाएगी। एंटी इंक्रोचमेंट अदालत में एंटी इंक्रोचमेंट हुक्म ने कहा, हलीम आदिल शेख पर सरकारी ज़मीन पर कब्जे का इल्ज़ाम है, लेकिन मुलज़िम तहकीकात में शामिल नहीं हो रहे हैं। कई बार नोटिस देने के बावजूद हलीम आदिल शेख बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने जमानत मंसूख कर दी और एंटी इंक्रोचमेंट हुकाम को बयान रिकॉर्ड करने के बाद हलीम आदिल शेख को जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एक और एहसास, मुत्तहिदा अरब अमीरात के आला तरीन एजाज ऑर्डर ऑफ द यूनियन मेडल से नवाजा गया। यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने तकरीब के दौरान अवार्ड से नवाजा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहल की वोटिंग 28 अगस्त को ही होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुताल्लिक दरखास्तें निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं कर रहे। ये उम्मीद न रखें कि आईनी मामले पर यूं ही फैसला दे देंगे। बेहतर होगा दरखास्त गुजार ये जंग मुताल्लिका फोरम पर लड़े। इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदी कमेटी के साथ बैठकर मामला हल करें। आबादी के लिहाज से कराची की नशिस्तें कम हैं। कोई हल्का 7 लाख तो कोई 10 लाख आबादी का है। हल्के के अवाम की नुमाइंदगी तो हो जाती है, हक अदा नहीं होता। इन मसाइल पर इलेक्शन कमीशन को तवज्जो देना होगी। हल्का बंदी उतनी अमूमी नौयत की नहीं होनी चाहिए। हमें ये तासुर मिला है बल्दियाती हल्का बंदियाँ सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर की हैं। ऐसा मालूम होता है कानून पर दुरुस्त अमल दरामद नहीं हुआ। दुरुस्त नुमाइंदगी ना होने और फंड्स की वजह से ही जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात हुई है। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग और केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का एक बार फिर ARY न्यूज़ को फौरी उसके मुतय्यन नंबर पर बहाल करने का हुक्म। ARY न्यूज़ बहाल ना होने की सूरत में चेयरमैन पैमरा को ज़ाती तौर पर पेश होने का हुक्म दिया गया। सिंध हाई कोर्ट के फरीकैन को 24 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। केबल ऑपरेटर भी फरीक बनाए गए। वकील ARY बैरिस्टर आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत मुतअद्दिद अहकामात जारी कर चुकी, लेकिन फरीकैन इन पर अमल दरामद नहीं कर रहे। पैमरा ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 20 के तहत केबल ऑपरेटर्स को हैंडल करती है। किसी भी केबल ऑपरेटर के कवायद की खिलाफ वर्जी पर पैमरा उनके खिलाफ कार्रवाई की मजाज है। ARY न्यूज़ की जबरी बंदिश पर पैमरा अपना आईनी और कानूनी किरदार अदा नहीं कर रही। वकील ने कहा, पैमरा के किरदार अदा न करने से ARY न्यूज़ को नाकाबिल इतलाफ नुकसान का सामना है। 1 हफ्ते की तारीख दी जाती है तो आइंदा समात पर फरीकैन को लाजमी जवाब दाखिल करने का पाबंद किया जाए। फैक्स के जरिए पैमरा नोटिस वसूल नहीं कर रहा, नोटिस ईमेल किए जाएं। अदालत ने हाईकोर्ट ऑफिस को नोटिस की तामील कराने की हिदायत कर दी। सिंध हाई कोर्ट में ARY न्यूज़ के सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मनसूखी के खिलाफ केस समात। वजारत दाखिला और पैमरा ARY न्यूज़ के खिलाफ मवाद अदालत में पेश न कर सके। सिंध हाई कोर्ट ने ARY न्यूज़ के सिक्योरिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट मनसूख करने के नोटिफिकेशन पर हुक्म इम्तना में तौसीह करते हुए समात 8 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। सरकारी बुकला ने मोहलत देने की इस्तदा की। पैमरा और हुकूमत ARY के खिलाफ कोई मटेरियल अब तक पेश नहीं कर सकी। अदालत हुक्म के बावजूद अब तक ARY को बहाल नहीं किया गया। ARY के वकील आबिद जुबैरी कहते हैं हुकूमत ने वक्त मांगा है। अदालत ने 8 सितंबर तक हुक्म इम्तना में तौसीह कर दी। केस लगा था, हुकूमत ने टाइम मांगा है और आप देख रहे हैं कि ये ऑर्डर है, कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था इनकी जो NOC हमारी वापस ली थी ARY की, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के हुक्म की और तब्दीली करते हुए आज तक रिस्टोर नहीं किया। पैमरा और हुकूमत शामिल है इसके अंदर। इस इलीगल एक्शन में हमारा कंटेंशन ये है कि इनके हुक्म पे ये केबल ऑपरेटर्स वगैरह इस चैनल को खोल नहीं गए। यही केस लगा था, उन्होंने खुद आके टाइम लिया और जो ऑर्डर था हमारा सस्पेंशन तो कोर्ट ने जिसको मजीद एक्सटेंड किया है 8 सितंबर तक। अभी 8 सितंबर को इसकी सुनवाई रखी है। इसमें एक और चीज़ ये है कि पिछली तारीख पे जब स्टे की दरख्वास्त लेकर आए थे तो पैमरा के वकील और गवर्नमेंट के वकील उन्होंने आके कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मटीरियल है, लेकिन आज भी इतने दिन गुजरने के बाद कोई मटीरियल सामने नहीं आया। ARY न्यूज़ की नशरियात पर पाबंदी के खिलाफ PTI के फैसल जावेद फट पड़े। कहा, आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार आज कहाँ हैं? ARY न्यूज़ की बंदिश पर आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। सच की आवाज बुलंद करना क्या ARY न्यूज़ का जुर्म है? जुर्म है। आज वो लोग जो आजादी सहाफत के अलमबरदार फिरते थे आज क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हुकूमत ताबड़तोड़ हमले कर रही है आजादी सहाफत और आजादी राय पर। ARY न्यूज़ को बंद किया गया, क्या आज आप आवाज नहीं उठाएंगे? क्यों
ARY की नशरियात को बंद किया जाता है। अदालत के हुक्म के बावजूद ARY की जो नशरियात है वो नहीं खोली जा रही। आज एक चैनल के साथ हुए, कल दूसरे चैनल के साथ भी होगा, तीसरे चैनल के साथ भी होगा। आज सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है, सबको मिलके आवाज उठानी चाहिए। पैमरा मीडिया हाउसेस पर पाबंदी नहीं लगा सकता। सूबाई वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं आज़ादी इज़हार राय के हक में आज लाहौर प्रेस क्लब पर एहतजाज किया जाएगा। आज़ादी सहाफत और जो जुल्म ढाया इस वक्त आपके बाकायदा आपके इस वक्त मीडिया हाउसेस बंद किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ आज एहतजाज है। आप सबसे इल्तिजा है कि आप मेहरबानी करके इस प्रोटेस्ट में शामिल हों। 5 बजे हम आप सबका इंतजार जो है वो प्रेस क्लब पे करेंगे। आप सब तशरीफ लाएं ताकि हम अपना मौक़िफ़ जो है ये पेश कर दें पैमरा के सामने कि इस किस्म की कोई पाबंदी जो है जो मीडिया फ्रीडम के खिलाफ है वो नहीं लानी चाहिए। कराची से खैबर तक KI न्यूज़ पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन ने ARY न्यूज़ की बंदिश खत्म करने का मुतालबा किया। बरतानवी सियासतदान भी ARY न्यूज़ की आवाज़ बन गए। लॉर्ड वाजिद खान और मेयर तौसीफ अनवर की ARY न्यूज़ की नशरियात बंद करने की मज़म्मत। लॉर्ड वाजिद खान ने कहा कि नशरियात बंद करने के फैसले से मायूसी हुई। आज़ाद मीडिया जमहूरियत का बुनियादी हिस्सा है। ARY न्यूज़ की बंदिश अफसोसनाक है। मेयर ऑफ रेशम तौसीफ अनवर का कहना है ARY न्यूज़ को निशाना बनाया जा रहा है। हर सतह पर मजम्मत करते हैं। मीडिया पर पाबंदी ऐसा इक़दाम है जिसकी मजम्मत होनी चाहिए। अफसोसनाक खबर है कि ARY को बंद किया गया है। वो उनका लाइसेंस के हवाले से कोई इशू आ रहे हैं, तो मैं पैमरा से गुजारिश करूँगा, जमहूरियत का बहुत बड़ा हिस्सा है आज़ाद मीडिया, ARY पर दबाव नहीं होना चाहिए। मुझे मायूसी हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फैसला जल्द अज जल्द रिवर्स कर लेंगे। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन मीडिया पे जो हो रही है, इसको हर सतह पे हम मजम्मत करते हैं। ऐसा एक इक़दाम है जिसकी मजम्मत की जाए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर मेडिकल की तालबा पर तशद्दुद और वीडियो वायरल का मामला। मुतासरा लड़की की मेडिकल रिपोर्ट ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। तालबा पर तशद्दुद साबित, जिस्म के 7 हिस्सों पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक चेहरे और आंखों पर सोजिश और जख्म हैं। बाजू और हाथों पर नाखून के निशानात हैं। ज़बरदस्ती सर के बाल और भवें काटी गई। खतीजा पर तशद्दुद करने वाली खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िम शेख दानिश को मुक़ामी अदालत में पेश किया। अदालत ने मुल्ज़िम शेख दानिश की 50,000 के मुचलके पर जमानत मंजूर कर ली। मुल्ज़िम दानिश को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और सैलाब से तबाही। कोयटा के नवाही इलाके ग़ज़ाबंद में सैलाबी रेला गाड़ी बहा ले गया। ख़वातीन और बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। कोहलू में मकानात मुनहदिम और सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। कई अजला से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। नसीराबाद और किलात में नदी नाले भरने से पानी घरों में दाखिल हो गया। जिला लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नाल में तूफ़ानी आ गई। राब्ता सड़कें बह गईं। कई देहात का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पानी घरों में दाखिल होने से मुतादिद घरों को नुकसान पहुँचा। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। गुज़िश्ता सैलाबी रेलों में पुलों को भी नुकसान पहुँचा था। कई पुल रेले में बह गए थे, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया ने एक हफ्ता गुजरने के बाद भी राब्ता सड़कों और पुलों की बहाली के लिए कोई इंतजामात नहीं किए। उमरकोट में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। बारिश से कपास और मिर्च की फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा है, लेकिन ताहाल उमरकोट को आफज़दा करार नहीं दिया गया। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज़ आरिसर। उमरकोट शहर समेत जिले के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पिथोरो, सामारो, कुंदरी के जो बेशतर इलाके हैं वो बारिश के बायस मुतासर हुए हैं। कपास और मिर्च की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। सिंध हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिन अजला को आफतज़दा करार दिया गया है। ताहाल जो उमरकोट ज़िले को आफतज़दा करार नहीं दिया गया है, जबकि जो बैराज की बेशतर इलाके हैं वहाँ पर फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। जी, सजावल में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। वार्ड नंबर 10 के घरों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। घरों में कई फीट पानी मौजूद है। परेशान मकीन इंतजामिया के मुंतज़िर हैं। मजीद जानेंगे सलीम खोसो से। सलीम, बताइए क्या सूरत हाल है?
सजावल जिला में हालिया बारिशों ने तबाही मचा दी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सजावल हेडक्वार्टर के वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर भी घरों में पानी, जो बारिश का पानी वो मौजूद है। ये तकरीबन 4 से 5 फुट जो बारिश का पानी है वो इसमें दाखिल हो गया, लेकिन ताहाल कहीं भी हमें जो यहाँ पर इंतजाम नजर नहीं आ रही। यहाँ के कुछ मकीन भी हमारे साथ मौजूद है। बच्चे हमारे पानी में डूब रहे हैं, हमारे को नहीं बाहर निकालते, नहीं खाने के लिए कुछ देते, हम क्या गरीब करें, हम यही पानी में ही पड़े रहे, हमारे को कोई भी देखने नहीं आता। मकीनों ने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो बारिश का पानी है वो हमारे घरों में मौजूद है, उसको निकालने के लिए कोई खास इक़दाम किए जाएं। गुज़िश्ता रोज जारी मूसलाधार बारिश से टंडो मोहम्मद खान में टालपुर टाउन डूब गया है। 3 से 4 फीट पानी जमा है। इलाका में 3 घरों में महसूर हो गए हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं ज़िशान खास खेली। टंडो मोहम्मद खान के टालपुर टाउन में मौजूद है। कल रात से तेज़ तूफ़ानी बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ था उसकी वजह से ये इलाका भी शदीद मुतासिर हुआ है। घरों के चारों अतराफ में पानी है, लोग घरों तक महसूर है। इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना है। ये अभी जो बरसातें हुई 2-3 दिन से तमाम तेज़ बरसाती तूफ़ानी बारिश है, जिसकी वजह से पानी तकरीबन 3-4 फुट खड़ा हुआ है। ठीक है। हमारे बच्चे यहाँ से ना निकल सकते हैं, ना आ सकते हैं, राशन की हर चीज़ की तंगी हो रही है। इंतजामिया इस बारे में कुछ भी नहीं कह रही। जी, इलाका मकीनों का ये कहना है कि इस बारिश के पानी से जो है इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका जो रोज़मर्रा मामूलात ज़िंदगी है वो भी बड़ी मुतासिर हुई है। खाने की जो है वो भी खाने की चीज़ों का फक़दान हो गया है। इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई इंतजामात नहीं किए कि निकासियाब का निज़ाम बेहतर हो सके। जी, कराची में मानसून की बारिश से सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। जगह जगह पानी, गंदगी और सीवेज के मसाइल हैं। टूटी सड़कों ने शहरों को मुश्किलात में डाल रखा है। मज़ीद जानेंगे हमारी नुमाइंदा इशरत खान से। बिल्कुल, आज भी सुबह से बारिश जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में कराची के बरस रही है, कहीं तेज कहीं हल्की। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ वो जोड़िया बाजार में मौजूद हूँ और इस वक्त भी यहाँ बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो सुबह से जारी है। ये सिटी कोर्ट की सड़क है जो कि आपको तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहर की कंडीशन इंतहाई ख़राब है। शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि ज़रा सी बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। कराची की इंतजामिया क्या कर रही है कहीं नज़र नहीं आती। ये कारोबारी हब कहलाता है। यहाँ जगह जगह पानी खड़ा है, कीचड़ है, सेवरेज है, गंदगी इस कदर है कि यहाँ खड़ा होना मुश्किल है। शहरियों ने अपील कर दी है कि खुदारा कराची की इंतजामिया कराची की सफाई के हवाले से नजरसानी करे। जी, कराची में लोड शेडिंग का चैन बेकाबू है। शहरी परेशान है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने कराची वालों की नींदें हराम कर दी। शहरी कहते हैं दिन में बिजली होती है ना ही रात में। बिलों में इजाफे ने शहरियों की चीखें निकाल दी। 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का दोबारा से भरपूर आगाज कर दिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। साल हमारा गुजर रहा है, इसमें हमारा मुल्क मौसम की वजह से हमें बड़े मनफी इसके अभी असरात नजर आ रहे हैं। मार्च और अप्रैल के बीच में पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा गर्म मुल्क था। फिर जो हमारी बारिशें हैं वो पहले आ गई और फिर वो आई तो उससे फ्लडिंग शुरू हो गई। कई इलाकों में बड़ी तबाही मची है फ्लडिंग की वजह से। फिर उससे पहले गर्मी पड़ी, आगे लगनी शुरू हो गई। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आपने देखा यूरोप में भी आगे लगी हुई हैं, अमेरिका में भी लगी हुई हैं। तो ये मौसम की तब्दीली और गर्मी की वजह से ये जो दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और हमारे भी चलगोजे के हमारे पुराने पूरा जंगल था, उसके अंदर बड़ी बुरी तरह आग लगी। पहाड़ी इलाकों में और स्पेशली नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, 3 जगह हमारे ग्लेशियर्स टूटे और उसकी वजह से फ्लड आया। तो ये सारी मौसम की तब्दीली की वजह से। इसलिए मैं आज सारी कौम को कह रहा हूँ, दरख्त लगाना हमारी आने वाली नस्लों के लिए इतना ज़रूरी है। अगर हमें अपने बच्चों की फिक्र है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, आपने देखा यूरोप में भी आगे लगी हुई हैं, अमेरिका में भी लगी हुई हैं, और पिछले साल तो साइबेरिया जो सबसे ठंडी जगह दुनिया में उधर भी आगे लगी हुई हैं। तो ये मौसम की तब्दीली और गर्मी की वजह से, ये जो दुनिया के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से ये हो रहा है। और हमारे भी चलगोजे के हमारे पुराने पूरा जंगल था, उसके अंदर बड़ी बुरी आग लगी। और फिर जो हमारे शुमाली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज या गिलगित बल्तिस्तान में जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, 3 जगह हमारे ग्लेशियर्स टूटे और उसकी वजह से फ्लड आया कि कई हमारे पुल बह गए ऊपर। तो ये सारी
मौसम की तब्दीली की वजह से। इसलिए मैं आज सारी कौम को कह रहा हूँ कि दरख्त लगाना हमारी आने वाली नस्लों के लिए इतना ज़रूरी है। अगर हमें अपने बच्चों की फिक्र है तो हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम सब की जिम्मेदारी है कि मुल्क में हम दरख्त लगाएं। हमारी जो दो हुकूमतें हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब में, उधर इंशाअल्लाह इस सीज़न में 10 करोड़ दरख्त, दोनों 10 करोड़ पंजाब में और 10 खैबर पख्तूनख्वा में लगा रहे हैं। और मैं आप सबको भी ये भी कहता हूँ कि आपने पूरी तरह हमारी शजरकारी में पूरी तरह शिरकत है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की सिफारिशात पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नए सुफरा की तैनातियों की मंजूरी दी है। जुल्करनैन हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उनसे मज़ीद जानेंगे। जुल्करनैन हैदर, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बैरून मुल्क नए सुफरा की तैनाती की मंजूरी दे दी है और बताया गया है कि क्या जुल्करनैन से रब्ता हमारा मुनक़ता हो के आपको आगाह करें। फैसल नियाज तरमीज़ी को मुत्तहिदा अरब अमारात, रज़ा बशीर तारड़ को जापान, आसिम इफ्तिखार को फ्रांस, मिस आयशा फारूकी को आयरलैंड, अली जावेद और आसिफ मेमन को हंगरी में सफ़ीर तैनात किया गया है। सलमान शरीफ दिल्ली में नाज़िमुल अमूर के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। फवाद शेर जद्दा में OIC में पाकिस्तान के नए मुस्तकिल मंदूब होंगे।